Good morning to all of you. I am Dr. Alok Agrawal and I will be taking your course Fluid Mechanics having subject code ME404. So in this video, I will be discussing about the course. Then we will discuss about syllabus and what are the important books. Then we will come into our unit 1 and we will see the introductory part of it, that is what is fluid, difference between fluid and solid, and then there are two types of fluid, that is liquid and gases. So we will see the difference between liquid and gases as well. After that we will see what we are going to learn in fluid mechanics. So this is the part of today's lecture, that is lecture number 1. So first we will discuss about the course. So this course is having code ME404. It consists of theory as well as practical. Theory exam is again divided into three parts, that is end sem, mid sem and quiz. End sem means that your end semester examination, which is of 70 marks, which is again there will be a mid sem, there will be two mid sem 1 and mid sem 2, each of 20 marks, and we will give the average, we will take the average of those 2 marks which will be obtained by you and will give mark accordingly out of the 20 marks. Again, 10 marks will be of quiz and assignment, which will be given by me in the due course of time. Like just before midsem 1, one assignment you will get, and just before midsem 2, you will get second assignment. So you have to complete it and submit it in time, and you will get 10 marks. Then come to practical. Practical consists of 50 marks in total, which is again divided into two parts, that is end-sem mark and lab mark. End-sem mark means what is your practical exam is about. After the exam or before the exam, you will be having practical exam which is of 30 marks, and there will be a lab work. We have to perform 10 experiment in this course, and each experiment is weightage of 2 marks. So as you are performing the experiment, you are getting 2 marks. So you can get 2 marks or in total 20 marks through this. Okay. So this is very easy to gain marks because you have to just come to college regularly and attend the classes, and you will get this 20 marks as well. So it is having a credit point of 4, which is again 3 like theory class and 2 practical. Total marks of this course is 150. Next is prerequisites. इसका क्या मतलब होता है that what subject you should know before reading this fluid mechanics. So you have already learned basic mechanical engineering in your first semester. In that subject you have learned about fluid mechanics. Some part of fluid mechanics you have learned there. So we will again discuss it here, but this you should know that what is fluid and all the things that have been learned by you in your first semester in basic mechanical engineering. Then engineering thermodynamics is very important before going to the fluid mechanics, because we are using many various concepts of engineering thermodynamics to to learn our fluid mechanics. Then there is some part of strength of material is also there in fluid mechanics. So you have to go through these three subjects, and then you will be able to understand the subject fluid mechanics very easily. Now come to the syllabus. Syllabus in unit 1, there will be a fluid static, means fluid is at rest. We have to learn the various properties of fluid when it is in the condition of rest. We will see hydrostatic and buoyancy, metacentric height, and we will also learn Newton's law of viscosity and various thermodynamic properties or various fluid properties. Okay, so this is about unit 1. In unit 2, we will move to fluid kinematics, where we will learn various kind of flow. When fluid flow, what are the various types of flow? We will see continuity equation, we will see potential flow, we will see circulation, velocity, potential, string function, and various things. So this is about unit 2, fluid kinematics. Next is fluid dynamics, in which we will first start with Reynolds transport theorem. Then we will go to Euler's equation, and we will derive Bernoulli's equation through Euler's equation. Then we will see moment and momentum equation, their applications like venturimeter, orifice meter. Then we will go to drag and lift force. This is very important part of this unit. We will see what is streamlined bodies and block bodies. So this is we have to learn in unit 3. Then unit 4 is flow through pipes. Here we will see Reynolds number, we will perform Reynolds experiment, we will see
We will differentiate fluid on the basis of laminar flow and turbulent flow. We will see what will happen when the fluid will flow over the plate or inside the pipe. We'll see Navier-Stokes equation. Then we'll go to pressure gradient. We'll see Darcy-Weisbach equation and friction factor. What are the various losses when the flow took place in pipes, that is minor losses and major losses. We'll see hydraulic gradient line and energy gradient line and various pipe networks, when how it will behave when the pipe is in series or in parallel. Finally, in last unit, we will see boundary layer theory as one part and compressible flow as second part. So this is all about the syllabus of fluid mechanics. The syllabus is quite big, so we have to go a bit fast. So your attendance is mandatory in the class. Next, the important books. So there are various books available in the market related to fluid mechanics, like Massey, Mechanics of Fluid, Shames, Fluid Mechanics, R.K. Bansal, a textbook of fluid mechanics and hydraulic machine, and R.K. Rajput with same title. So these two books are good for RGPV exam point of view, and I will be referring all these four books. And for above two books, I will be taking the theory part and few numericals, and mainly I will be dealing with R.K. Bansal. So you can also take these books from the library. So these are the important books. Now let us move to our introduction part of Unit 1. So mostly I will be dealing with in Hindi and English both, because it will be easy to understand for you. So a substance, every substance, कोई भी जो substance है, it exists in three different phases that we have know from our school time. That is solid, liquid, and gas. And when we categorize solid in one part and liquid and gas in another part, so combinedly we can say liquid and gas is called as fluid. So what is fluid? Very simple definition. What it says that a substance which has ability to flow is called fluid. मतलब जो भी substance flow होने की प्रवृत्ति रखता है उसको हम fluid बोलते हैं. So this definition we have learned in our school time in from 9th, 10th, 11th and 12th. Okay. So this is a very basic definition, and this is not an engineering definition. So now we are doing engineering, so we have to modify our definition accordingly. So now what is fluid? See what is written here. A fluid is a substance that deform continuously. फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कंटिन्यूसली डिफॉर्म करेगा व्हेन सब्जेक्टेड टू अ टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस. जब भी उसमें कोई भी छोटे से छोटा टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स लगेगा, तो जो फ्लूइड का एलिमेंट है वो डिफॉर्म करना चालू हो जाएगा, हाउएवर स्मॉल द शियर स्ट्रेस में भी. अब इसको थोड़ा समझते हैं अपन. और इसी इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, इसी प्रॉपर्टी के कारण जो फ्लूइड है वो फ्लो होने की कैपेबिलिटी रखता है. अब देखिए दो चीज, ये फॉर एग्जांपल सॉलिड है और ये फॉर एग्जांपल लिक्विड का एलिमेंट है. जैसे ही हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, सॉलिड जो है वो थोड़ा डिफॉर्म होगा और रुक जाएगा. लेकिन लिक्विड में क्या है, अगर हम वो फोर्स को लगाए रखेंगे तो वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होएगा. पहले एलिमेंट ये था, T0 टाइम में, फिर T1 टाइम में डिफॉर्मेशन बढ़ा, T2 टाइम में डिफॉर्मेशन और बढ़ गया. तो इससे क्या कहने का मतलब है कि जैसे ही हमने एक एलिमेंट में फोर्स लगाया, फ्लूइड के एक एलिमेंट में फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स, अगेन हाँ टेंजेंशियल फोर्स, तो क्या होगा, वो भले ही फोर्स कितने छोटा से छोटा होगा, फ्लूइड का एलिमेंट डिफॉर्म होना स्टार्ट करेगा और वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते जाएगा जब तक वो टेंजेंशियल फोर्स उस पर लगा हुआ है. जैसे ही हम टेंजेंशियल फोर्स हटा देंगे या शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स हटा देंगे, तो वो हट जाएगा, वो डिफॉर्म होना बंद हो जाएगा. लेकिन जब तक लगा हुआ है, भले ही वो कितने से छोटा क्यों ना हो, ठीक. तो वो फ्लूइड फ्लो, इसी प्रॉपर्टी के कारण जो फ्लूइड है वो फ्लो होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता जाता है. अब हम कंपेयर करते हैं सॉलिड और फ्लूइड को, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि जो सॉलिड होते हैं, देयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू द फ्लूइड. What does it mean? That the force of attraction between the molecules of solid are much higher, much bigger than those of the fluid. ठीक. तो इसके कारण क्या होता है, जो सॉलिड और फ्लूइड है उनकी जो एबिलिटी होती है शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की, वो अलग अलग. सॉलिड शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स जो हम लगाते हैं तो उसको रेजिस्ट कर पाता है, लेकिन लिक्विड क्या होता है, उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता. ठीक. अब देखते हैं अपन, ये यहाँ पे भी फिर से अगेन वही लिखा है कि a solid can resist an applied shear stress by deforming.
वेयर एज फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ shear स्ट्रेस। मतलब जैसे ही हमने सॉलिड में फोर्स लगाया, अगर फोर्स कम है तो सॉलिड डिफॉर्म नहीं होगा। shear फोर्स लगाया हमने, shear स्ट्रेस लगाया तो सॉलिड डिफॉर्म नहीं होगा। जैसे हम फोर्स या लोड बढ़ाएंगे तो वो थोड़ा डिफॉर्म होगा। ठीक। और अगर हम उस लोड को कांस्टेंट रख देंगे तो डिफॉर्मेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन फ्लूइड के साथ ऐसा नहीं है। फ्लूइड में हम कितने भी छोटे से छोटा shear फोर्स लगाए तो वो डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो डिफॉर्मेशन कंटिन्यू होते रहेगा जब तक हम वो फोर्स लगा के रखे। ठीक। अ सॉलिड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सॉलिड में क्या होता है, हमने देखा है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट इन फ्लूइड इट इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। सी अब देखिए यहाँ पे समझते हैं अपन, ये सॉलिड है जो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था। जैसे ही हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, फॉर एग्जाम्पल डिफॉर्म नहीं हुआ क्योंकि सॉलिड रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स बढ़ाया तो ये रिफॉर्म हुआ। डिफॉर्म होकर देखो कैसा हो गया। अब ये फोर्स अगर हम कांस्टेंट रख दें, फोर्स को नहीं बढ़ाएंगे तो डिफॉर्मेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये डिफॉर्मेशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन फ्लूइड में ऐसा नहीं होता है। फ्लूइड में अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये तुरंत डिफॉर्मेशन होना डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये रेजिस्ट बिल्कुल नहीं करेगा। फ्लूइड किसी प्रकार के टेंजेंशियल फोर्स को रेजिस्टेंस नहीं देता है। और अगर मैं फोर्स नहीं भी बढ़ा रहा हूँ तो भी ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा। मतलब फ्लूइड एलिमेंट पहले रेक्टेंगुलर था, फिर पैरेललोग्राम बनेगा, डिफॉर्मेशन और बनेगा तो वो और ज्यादा टिल्ट होता जाएगा। और कंटिन्यूअसली इसी प्रॉपर्टी के कारण जो फ्लूइड है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लो हो सके। ठीक। अब फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं लिक्विड में और गैस में क्या डिफरेंस होता है। तो फोर्स ऑफ कोहेशन और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड एज कम्पेयर टू गैस। मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस में और ज्यादा कम होता है। इससे तो गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर भागते रहते हैं। अगेन, लिक्विड को कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है और इसलिए इसको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोल देते हैं। लेकिन 100% ये भी इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है। लेकिन गैस को कंप्रेस करना बहुत आसान होता है, वो बहुत थोड़े से फोर्स से कंप्रेस हम उसको कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको कंप्रेसिबल फ्लो फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसका शेप वो ले लेगा। जैसे ग्लास में अगर हमने पानी डाला तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर हमने कप में पानी डाला तो कप का शेप ले लेगा। लेकिन गैस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम होता नहीं। हम गैस को किसी भी कंटेनर में डालें वो पूरा कंटेनर भर देगा, उसका वॉल्यूम उतना ही हो जाएगा जितना कंटेनर का वॉल्यूम है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि लिक्विड में एक फ्री सरफेस मिलता है, लेकिन गैस में उसकी सरफेस नहीं मिलता क्योंकि वो वेसल को पूरा का पूरा भर देता है। तो फ्री सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिक्विड में। ठीक। वो लिक्विड कंटेनर के वॉल्यूम से ज्यादा अगर वॉल्यूम नहीं है लिक्विड का तो हमको एक फ्री सरफेस मिलेगा। जैसे पानी के हमने एक ग्लास लिया तो जो ऊपर वाली लेयर है, पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर है ग्लास में, कितना भी पानी भरा, दैट अपर लेयर इज कॉल्ड फ्री सरफेस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस। नाउ अब फ्लूइड मैकेनिक्स में आते हैं। मैकेनिक्स आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब वहां पे हम सॉलिड बॉडी की बात करते थे, यहाँ पे हम उसी मैकेनिक्स को किस में लगाएंगे, फ्लूइड में लगाएंगे। तो मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस दैट डील्स विद बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो उस बॉडी में या तो वो स्टेशनरी रहेगी या फिर वो मोशन में रहेगी। तो मैकेनिक्स उन दोनों ही कंडीशन में उस बॉडी की स्टडी करता है कि जैसे ही उसमें फोर्स लगा तो उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, अगर वो बॉडी स्टेशनरी है या बॉडी मूविंग है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है कि अगर फ्लूइड है तो वो फ्लूइड रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, उसका बिहेवियर कैसा होगा वो हमको पढ़ना है पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक। तो फ्लूइड मैकेनिक्स दो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। फ्लूइड स्टैटिक जो हमने सिलेबस में देखा था, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। अगर फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में वो मूव नहीं कर रहा है तो वो फ्लूइड स्टैटिक हो गया। जैसे पानी एक गिलास में भरा हुआ है, डैम में पानी भरा हुआ है, तो दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड स्टैटिक। लेकिन अगर फ्लूइड मूव कर रहा है, उसमें कुछ मोशन है, तो हम उसको बोलेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स भी सेम है, फ्लूइड मोशन में होना है। लेकिन फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है कि कोई भी चीज मोशन में आ रही है तो कब आती है, जब उसमें कुछ फोर्स लगता है। ठीक। तो अगर हम उस फोर्स की भी स्टडी कर रहे हैं जिसके कारण फ्लूइड मोशन में आया तो वो आ जाएगा फ्लूइड डायनामिक्स, और अगर हम उस फोर्स को हटा दें वहां से तो वो आ जाएगा फ्लूइड।
तो ये तीन चीज हमको शुरू के 3 यूनिट में पढ़ना है। ठीक। नेक्स्ट, एप्लीकेशन क्या है भाई? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने का क्या मतलब है? तो हर जगह आप देखिए, आप अगर ध्यान से अगर देखेंगे, 10 सेकंड सोचेंगे, तो हर जगह फ्लूइड है। क्योंकि फ्लूइड क्या है? या तो लिक्विड है या गैस है। अरे हमारा पूरा शरीर फ्लूइड से बना हुआ है, पानी और ब्लड। हम जो सांस लेते हैं एयर, वो भी फ्लूइड है। ठीक। तो आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो फ्लूइड है। बायोमैकेनिक्स का अगर हम एप्लीकेशन देखें तो एयर जो हमारे लंग्स में हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो है। घरों में देखो, जो भी पाइपिंग सिस्टम है, हम पानी से नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना बनता है, सब चीजें क्या है? फ्लूइड है। हमारा एयर कंडीशनिंग में फ्लूइड का यूज होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या यूज है इसका? जो टरबाइन चलते हैं, बड़े बड़े वाटर टरबाइन, जो पंप चलते हैं, स्टीम टरबाइन भी देख लो, स्टीम भी फ्लूइड है। पंप, घर में पानी चढ़ा रहे हैं हम, जो पंप है वो फ्लूइड है। एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन चल रहा है ऊपर, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? फ्लूइड से घिरा हुआ है। तो हर जगह अगर आप देखें तो फ्लूइड ही फ्लूइड है। तो almost everything in this world is either in contact with fluid or itself is a fluid। या तो वो फ्लूइड के कांटेक्ट में है या वो खुद ही फ्लूइड है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन हर जगह है। ठीक। अब जहाँ भी जितना भी पढ़ेंगे उतना फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्जाम्पल आता जाएगा। तो आज के लिए अपन इतना देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है फ्लूइड की, वो हम स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। दैट इज मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी, और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल।